This is another example of absolute asymmetric synthesis. This example also you can write. Write which example you feel easy, that example you write in the exam. It is NO2, here CH. Actually in so many books this example is used, but the previous example also you can write. That is more easy than this example. I am just writing because in so many books such this example is mentioned. That's why I am writing and showing you this example. Means here we are carrying ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं. ये हमारा सबस्ट्रेट है, इसका हम लोग ब्रोमिनेशन कर रहे हैं. ब्रोमिनेशन में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे Br लग जाएगा. हियर Br, दोनों कार्बन के Br लग जाएगा, और ये दोनों कार्बन हैं जो अकायरल है वो कायरल में कन्वर्ट हो जाएंगे. ब्रोमिनेशन करने के बाद डबल बॉन्ड टूट जाएगा एंड द मॉलिक्यूल बिकम द अकायरल मॉलिक्यूल. लेट्स सी. NO2, here be NO2. This space is less, that's why I am writing very small, because very less space is there. Here Br, and here hydrogen, and here hydrogen. This is the product form. It is NO. Okay, you might not be seeing properly, but it is NO, and this NO, it is attached to this carbon, and this hydrogen is attached to this carbon. So write properly when you are writing. Properly draw the structure. It is the other example of the absolute asymmetric synthesis. I told you now only that it is a simple reaction without the use of any enantiomer, without the use of any chiral molecule. So now we'll move to the next, that is partial asymmetric synthesis. At first we'll write the definition. The definition is, it is the synthesis of optically active product from optically inactive substrate by using enantiomer. See, in this reaction we are using the enantiomer. The only difference in this and the previous one is that in the previous absolute we didn't use any enantiomer to carry out the reaction, and in this one we are using the enantiomer to carry out the reaction. So example we will take. See, these are of 3-4 types. First one is chiral. First one is chiral substrate. Second one is chiral reagent, REAGE. 3-4 types partial asymmetric synthesis. मतलब जो enantiomer we are using to carry out the reaction, that enantiomer are of 3-4 types. Means in place of enantiomer we can use chiral substrate also. In place of enantiomer we can use chiral reagent also, and enzymes also we can use. So 3-4 types are there. Next one is chiral auxiliary. And next one is chiral catalyst. These are the 4 types. Now we will discuss one by one each type. First type is chiral. In short we will explain.
in chiral substrate. Now what is chiral substrate? Now chiral substrate here we'll write has chiral center adjacent to रिएक्शन साइट। इसमें हम लोग मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग एक S प्लस Ln9। दिस इज द एग्जाम्पल। इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट दे आर सेइंग दैट कि सपोज़ कोई रिएक्शन है, सपोज़ यही इसको ही ले लेते हैं हम लोग, या फिर इसी का एग्जांपल ले लेते हैं एक। ये एग्जांपल तो है नहीं, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज़ वी आर कैरिंग आउट द रिएक्शन। सो इस कायरल सबस्ट्रेट मतलब क्या, जो हम लोग इसमें H2 यूज़ कर रहे हैं, H2 इसके जगह पे हम लोग ये कायरल सबस्ट्रेट नहीं, कायरल सबस्ट्रेट सॉरी व्हाट डज इट मीन्स, कायरल सबस्ट्रेट मीन्स जो रिएक्टेंट है हमारे पास। ओके जो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है, सपोज ये रिएक्टेंट है, इससे हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पर सबस्ट्रेट जो एनेंशियोमर लेने वाले थे हम लोग, जो एनेंशियोमर लेने वाले थे इसमें, जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी आउट होने वाली थी, वो नहीं लेंगे। उसके बदले क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट लेंगे उसमें ही एक कायरल सेंटर रहेगा। ये एक टाइप है, उसमें ही एक कायरल सेंटर रहेगा, जो ये S, इसको हम लोग रिएक्टेंट लेंगे, इससे हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस जो रिएक्टेंट ये है SLN9, इसी के अंदर एक कायरल पार्ट है, इसी के अंदर एक कायरल कार्बन है, जो हमको प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगा, है ना। ये रिएक्टेंट है, इसमें एक कायरल कार्बन है और एक अकायरल कार्बन है। जो अकायरल है वो कायरल बनेगा प्रोडक्ट में जाकर, मतलब जो कायरल कार्बन है इसके अंदर, वो हेल्प करेगा इसको कन्वर्ट करने के लिए कायरल कंपाउंड में। सो इतना ही लिखो इसके अंदर। बहुत एग्जाम्पल देख के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिखना सफिशिएंट है। अभी जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे तुमको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लेंगे हमको, इन सब के अलग अलग एग्जाम्पल्स लेंगे हमको, तो समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, आगे पढ़ते फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कायरल रिएजेंट। नाउ कायरल रिएजेंट क्या है, इसमें रिमूवल एंड ऐड, रिमूव और ऐड इनएंशियोटॉपिक प्रोटॉन, रिमूव और ऐड इनएंशियोटॉपिक प्रोटॉन। अब देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल, C2H5 CH डबल बॉन्ड O, नहीं यहाँ पे H नहीं लगेगा, सिर्फ C है, ये CH3। नाउ विल कैरी आउट द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ R प्लस माइनस बिनॉल, इट विल गिव C2H5 C, एक OH, एक हाइड्रोजन CH3। ये इसमें देखो, इन दिस हम लोग रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, जिस रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी आउट हो रही है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, इट इज़ कन्वर्टिंग टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। जो हमने यूज़ किया है इनएंशियोटॉप, वो क्या है, R प्लस बाइनॉल, इसके प्रेजेंस में रिएक्ट कैरी किया है। तो ये क्या है, R बाइनॉल, ये इनएंशियोमर है, या हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ ए कायरल मॉलिक्यूल, एक कायरल मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में। जैसे ने पहले में क्या था हमारा सबस्ट्रेट, इसमें क्या है, इसमें ऐसा कोई भी रिएजेंट यूज़ नहीं किया है, इस रिएक्शन में क्या ऐसा कोई भी रिएजेंट यूज़ नहीं किया है। सिंपल ये वाला सबस्ट्रेट इस जगह पे
इसके जगह पे ये रख दिया एस एलेनिल और इससे प्रोडक्ट बना दिया। तो इसी के अंदर इसी कंपाउंड में उन्होंने बताया है कि इसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है जो हेल्प करता है प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, बस तो ये सफिशिएंट है इतना। इसमें क्या है, ये रिएजेंट है और ये रिएजेंट से इससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल we'll take, that is chiral auxiliary C1, chiral auxiliary XI, chiral auxiliary मतलब it is join to substrate and is removed to form product. Now example, CH3 C double bond O COOH, इसमें है माइनस मेंथॉल CH3 OH COOH, ये रिएक्शन है। इसमें कायरल ऑक्सिलरी मतलब क्या है, वी आर यूजिंग कायरल ऑक्सिलरी मतलब ये है माइनस मेंथॉल THOL माइनस मेंथॉल, इट इज़ यूज्ड एज ए कायरल ऑक्सिलरी मतलब ये इस सबस्ट्रेट में ऐड हो रहा है और जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा ये रिमूव हो जाएगा, उसको बोलते हैं कायरल ऑक्सिलरी। अंडरस्टैंड, कायरल ऑक्सिलरी मतलब जैसे ही रिएक्शन जैसे ये सबस्ट्रेट लिया इसमें अटैच हो जाएगा और जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा इट विल रिमूव, अपने आप निकल जाएगा बाहर, प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगा और अपने आप बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, इसी और डी पार्ट है, इट इज़ कायरल कैटलिस्ट LYST। कायरल कैटलिस्ट में एक कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करेंगे टू कैरी आउट द रिएक्शन। इसके भी रिएक्शन मत लिखो, बहुत एक्चुअली वेरी हार्ड रिएक्शंस आर गिवन इन द बुक, सो इंस्टेड जस्ट यूज़, जैसे हमने ये सबस्ट्रेट इसमें लिखा है, जनरली एक सबस्ट्रेट लिख दिया, सबस्ट्रेट का नाम लिख दिया, सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, बस इसमें भी ये लिख दो, एक कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट ये है कैटलिस्ट R बाइनैप, ये एग्जाम्पल, ये कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन क्या लिखोगे इसके अंदर, ये लिखोगे इन दिस बाइनैप कैटलिस्ट, R बाइनैप कैटलिस्ट हैज़ ए catalyst we are using to carry out the reaction to convert the optically inactive compound to optically active compound, बस सफिशेंट है। इसका रिएक्शंस भी दिए हैं बुक में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा they are very tough and they are very lengthy, so instead of learning that lengthy examples, it is better to write this much example, it is sufficient. And whatever I told you now, that what to write in this, that you mention in under this heading, that this is the catalyst we are using to convert the reactant to product, the reactant is inactive, product is active, these things you mention. Now this is sufficient. Asymmetric synthesis definition you will write, these two types are there, absolute asymmetric synthesis, ये इसका this definition you will write, one example you will take, this example or the other example I told you, whichever you feel easy that you write. Then the partial asymmetric synthesis, it's also definition I have given, definition you will write, these are the four types that you will mention. And if in chance and if by chance you forgot this example, this is lengthy, then it's better to leave here itself, write this much and then also over up. If you'll write up to this also, then also it is sufficient, because sometimes we didn't remember each and every reaction, so it is better to write up till this only instead of writing the wrong reactions. Okay, so here we have finished the asymmetric synthesis topic, and next time we'll start our new topic. Thank you.